Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alivaid and you are on the channel of Medicare. So as you know that in the previous video we have started the lecture of alkaloids, in which we have discussed what is the introduction of alkaloids, what are the properties, function, what are the methods to identify or to extract the alkaloids. We have covered all the things, but in today's video we are going to start the classification of alkaloids, that how they are classified. So alkaloids are chemically classified on the base of their chemical structure and the presence of nitrogen atom. So okay, so we have classified the alkaloids into the two major groups. So the first is the non-heterocyclic alkaloids and second is the heterocyclic alkaloids. So what are them? Let's see the detail of it. First of all, non-heterocyclic alkaloids. These are those alkaloids in which nitrogen atom is present outside the ring system, and for example of these alkaloids are like taxol, epinephrine, colchicine and cathonine. So so these are the alkaloids and they are present in these plants like taxa, brifiola, epinephrida, and this is the anti-inflammatory alkaloid which is present in the corns and the seed, and this is कैथा इडियोलस, ठीक है, जिसके अंदर ये अल्कलॉइड है. सो इनकी स्ट्रक्चर भी आप लोगों को यहाँ दी गई है. अगर आप इसकी स्ट्रक्चर में देखें कि नाइट्रोजन एटम विल बी द आउटसाइड ऑफ द रिंग. तो इफ़ आई विल जूम ऑल ऑफ दीम स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज एपिनेफ्रिडीन. इसकी स्ट्रक्चर में आप नाइट्रोजन यहाँ पर देख रहे हैं, रिंग के बाहर है. फिर कैथोइन में नाइट्रोजन NH2 यहाँ पर है, रिंग के बाहर. एंड कोलकोचिन एंड इट्स नाइट्रोजन इज हेयर, सो वो भी रिंग के बाहर है. सो दैट्स मीन दीज ऑल आर द नॉन हेट्रोसाइक्लिक alkaloids having the nitrogen atom outside the ring. But there are some alkaloids which have the nitrogen atom within their ring, which are called heterocyclic alkaloids. So the alkaloids in which nitrogen atom is present within a cyclic ring is called heterocyclic alkaloids, further divided into different groups on the presence of heterocyclic systems present in the structure. So heterocyclic observe most important alkaloids are heterocyclic alkaloids in nature. These all the structures like pyridine. Zoom out their structure and you will see this is the pyridine having nitrogen atom. This is the piperidine having nitrogen within the structure. This is indole having 6 carbon atom and then 5 carbon atom with this nitrogen. This is the structure of purine having one or more nitrogen atom. This is tropane, this is imidazole, this is isoquinoline, and this is the structure of quinoline. You have seen that every this structure has the nitrogen atom within their ring system. So next we are going to start the classification of heterocyclic alkaloids, their further types. So the first type of heterocyclic alkaloid is the pyridine piperidine alkaloid. These are the alkaloids which contain pyridine or piperidine nucleus in their structure, mean they have the structure of pyridine or piperidine in them. Examples is tobacco, nicotine, araca which contain ericoline, and lobia which contain lobine alkaloid. So this is the structure of nicotine and this is the structure of lobine alkaloids, and they contain pyridine within them. So now let's see the structure of pyridine or piperidine. सो पायरिडीन और पिपरिडीन ये दो स्ट्रक्चर्स हैं. ये दो स्ट्रक्चर्स निकोटीन और लोबीन के स्ट्रक्चर में लाजमी होने चाहिए. अब हम देखते हैं कि नहीं, ठीक है. अब हम निकोटीन के स्ट्रक्चर पे सबसे पहले जूम आउट करते हैं और अब आप मुझे बताएं कि निकोटीन के स्ट्रक्चर में पायरिडीन का स्ट्रक्चर है या पिपरिडीन का स्ट्रक्चर है. Yes, we have pyridine structure in within the nicotine structure. ठीक है. सो हमारे पास पायरिडीन का स्ट्रक्चर किस तरह है, अगर हम इधर ड्रॉ करें अपने पायरिडीन के स्ट्रक्चर को, ठीक है बच्चों. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन, ठीक है. इस तरह से ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है, ठीक है. ये है पायरिडीन. अब इसी के साथ अगर मैं यहाँ इस पे एक 5 कार्बन एटम रिंग बनाऊं, जो कि कुछ इस तरह से होगी, ठीक है. ये रही. सो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है निकोटीन का स्ट्रक्चर हैविंग द पायरिडीन रिंग. सो ये पायरिडीन रिंग निकोटीन के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए निकोटीन को हम पायरिडीन पिपरिडीन
अल्कलाइड भी कहते हैं। अच्छा, सेकंड एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो लोबीन की थी। इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो ये बेंजीन रिंग है, नो नो नो, ये वाला स्ट्रक्चर ये पिपरीडीन से मिलता है, क्योंकि पिपरीडीन में इस तरह की रिंग N और साथ H अटैच होता है, बस H की जगह CH3 अटैच है, बाकी स्ट्रक्चर वही है, इसलिए हम इसको लोबीन को भी पिपरीडीन और पायरीडीन अल्कलाइड कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स को याद करने के लिए आपने जो निमोनिक याद रखना है, टोबैको अराका लोबिया मीन्स टायर्ड, निकोटीन, एड, लव। टायर्ड से टोबैको, टोबैको में निकोटीन है, एड से अराकिया या अराकोलिन हो जाएगा, एड लोबिया से लव। ठीक है, सो टायर्ड, निकोटीन, एड, लव, सो उससे हमारे पास ये बन जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ अल्कलाइड्स पे जाते हैं। ये वो अल्कलाइड्स होंगे विच कंटेन्स द ट्रोपेन न्यूक्लियस विद इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। लेट्स सी देयर एग्जांपल्स ऑफ अल्कलाइड्स विच कंटेन ट्रोपेन न्यूक्लियस विद इन themselves. So the example is the Atropa belladonna which contain atropine or hyoscyamus, hyoscyamus which contain atropine and hyoscyamus, stramonium and coca leaves. ठीक है, इन सब के अंदर ट्रोपेन इज़ प्रेजेंट। सो अब हम जी चले जाते हैं ट्रोपेन की स्ट्रक्चर के ऊपर। ट्रोपेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। ड्रॉ करने से ना ईजी हो जाता है, सारी स्ट्रक्चर्स को आपने ड्रॉ लाजमी करके देखना है। तो ये हमारे पास ट्रोपेन का सैंपल है। आप भी इसे बेशक देख के ही बनाएं, लेकिन पहली बार आपने इसे बनाना ज़रूर है। ठीक है, कुछ इस तरह से है। फिर उसके बाद इसकी दोनों यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं जो कि N और H को जा रही हैं। देन इट्स विल बी लाइक दिस एंड दिस, या सो इस तरह का स्ट्रक्चर है ट्रोपेन का। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर एट्रोपीन, हायोसाइमस या इस तरह के अल्कलाइड्स के अंदर प्रेजेंट है, कोकीन के अंदर किस तरह से प्रेजेंट है। तो ये आप लोग देख रहे हैं एट्रोपीन का स्ट्रक्चर, ये ट्रोपेन का न्यूक्लियस यहाँ है। इसी तरह हायोसाइमस के अंदर ये ट्रोपेन का साइमस। अब इसको याद आप किस तरह से करेंगे। बेलाडोना से मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वन थिंग लेट बी, या सो हायोसाइमस को आप यहाँ से करेंगे रिजेक्ट। ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग कोका, ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग कोका, इन 3 एग्जाम्पल्स को याद। हायोसाइमस आपको खुद ही याद हो जाएगा। Third type of alkalides is the quinine alkalides which contain quinine nucleus within their structure, and the examples of quinine alkalide is cinchona. Always when the cinchona quinine word is came, you will remember the name of cinchona because it contain quinine, quinidine, cinquinine और cinquinidine. So इनके अंदर क्यूनिन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब क्यूनिन का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा क्यूनिन का, 2 बेंजीन की रिंग्स हैं और एक में नाइट्रोजन यहाँ अटैच होता है क्यूनिन के अंदर। अब हम क्यूनिडीन और क्यूनिन के स्ट्रक्चर में ये 2 रिंग्स प्रेजेंट हैं ऐसे, तो ये दोनों मिलके क्यूनिन अल्कलाइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और क्लासिफिकेशन इज आइसोक्यूनोनिन अल्कलाइड्स व्हिच कंटेन आइसोक्यूनिन न्यूक्लियस इन देम। इनकी एग्जांपल्स इज द एपिका, ओपियम, हाइड्रासिस, सेंगुनेरिया एंड क्यूरेरी। अब इन सबको याद कैसे करना है। इन सबको याद करना है आपी, एपिका से आपी, ओपियम से ओफन, हाइड्रासिस से हाइड, सेंगुनेरिया से स्मॉल, इंक्लूज। कि एक आपी है जो ओफन, ठीक है, कभी कभार हाइड्रासिस से हाइड कर देती है, सेंगुनेरिया से स्मॉल क्लूज। कि एक आपकी एक आपी है जो कभी कभार छुपा देती है आपसे छोटे छोटे क्लूज़ को, आपसे पहेलियाँ पूछती हैं और छोटे छोटे मतलब हिंट्स या क्लूज़ कह सकते हैं, वो आपको वो देती हैं। ठीक है, सो आइसो क्यूनोन और क्लाड्स को याद करने का ये तरीका है। और उनकी एग्जांपल्स में मॉर्फिन और इमेटिडीन के स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आइसोक्यूनोनिन का स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि इस तरह से है। नाइट्रोजन एटम थोड़ा सा उस तरफ चला गया है। आइसोक्यूनोन और क्यूनोन का स्ट्रक्चर मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट है। तो ये इसमें आप ये वाली रिंग देखें, ये वाली वही रिंग है, और इसमें ये वाली रिंग देखो आप, तो ये वही की वही रिंग आ जाती है। ठीक है,
इंडोल अल्कलाइड्स पे जाते हैं. सो दीज आर द अल्कलाइड्स विच कंटेन इंडोल इन देयर न्यूक्लियस सिस्टम. अब वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल हेयर. सो ये हमारे पास इंडोल है. बिल्कुल मिलता है तकरीबन. ये किसके साथ ज़्यादा इसकी अटैचमेंट है? प्यूरिन से थोड़ा बहुत मिलता है. तो अब हम देख लेते हैं कि इंडोल कंटेनिंग में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं. रोवोल्फिया की एग्जांपल है, रिसरपेंटीन, कैथरेंस की एग्जांपल है, एर्गोट, नक्सवोमिका की एग्जांपल इसके अंदर आ जाती है. ठीक है. सो इन इन एग्जांपल्स को याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ. सो इसको याद रखना है. रफ़ कैट. ठीक है. रोवोल्फिया से रफ़, कैथरेंसिस से कैट. रफ़ कैट, इर्गोट से इंजॉय, नक्सवोमिका से बन जाएगा नट्स, एंड फाइगोस्टिग्मीन से बन जाएगा पेप्सी. कि एक रफ़ कैट है जो इंजॉय करती है नट्स यानी बादाम और पेप्सी. तो एक कैट है जो कि बादाम और पेप्सी जो है वो इंजॉय कर रही है, और वो इंडोल 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 मतलब इंडोर में इंजॉय कर रही है, मतलब दरवाजे में बैठ के इंजॉय कर रही है. तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे. ठीक है. ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आपने याद रखना है. प्यूरिन बेसिस ये ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स भी हम इन्हें कहते हैं. इनके अंदर प्यूरिन का न्यूक्लियस होता है. इनको प्यूरिन बेसिस भी कह देते हैं, ज़ैंथीन अल्कलॉइड्स भी कह देते हैं. इनमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो आपकी टी और कॉफ़ी की होती है. टी में क्योंकि कैफ़ीन अल्कलॉइड या थियोफिनाइलिन अल्कलॉइड होता है, कॉफ़ी में भी यही अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. तो इन अल्कलॉइड्स को प्यूरिन बेसिस कहते हैं. ठीक है. अब प्यूरिन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर. ये आपके कॉफ़ी के अंदर प्यूरिन ये वाला अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है. ठीक है. ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर. ये है ठीक है बच्चों. उसके बाद हम आ जाते हैं अमाइडाजोल अल्कलॉइड्स. सो दीज आर द अल्कलॉइड्स विच कंटेन अमाइडाजोल न्यूक्लियस इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. और द एग्जांपल्स ऑफ द इसकी सिर्फ एक ही एग्जांपल है पाइलोकार्पस विच कंटेन पाइलोकार्पिन. ठीक है. तो इसके अंदर अमाइडाजोल का ये दो नाइट्रोजन वाला स्ट्रक्चर ये अमाइडाजोल का होता है. Terpenol alkaloids, these are the alkaloids which contain terpentine in their nucleus like टैक्सोल, एकोनाइटीन एंड कॉनिन. ये सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने कहाँ पढ़े थे? ये हमने पढ़े थे जब हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स की. तो उनके अंदर इन सब की एग्जांपल्स आई थी. तो इनको हमने दोबारा इधर इसलिए शामिल किया क्योंकि इनका ये टर्पेनाइड्स अल्कलॉइड्स आते हैं. ठीक है. यहाँ पर दोनों तरह की एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी और नॉन हेट्रोसाइक्लिक भी. लास्ट टाइप इज आवर स्टेरॉयडल न्यूक्लियस विच कंटेन्स स्टेरॉइड्स विद इन दियर न्यूक्लियस. स्टेरॉयडल न्यूक्लियस का नाम ये होता है. एग्जाम्पल इसमें प्रोटोविराटीन आ जाती है, और सोलैंडीन और सोलैंसोडाइन विच इज़ सोलेनम स्पीशीज़. ठीक है. उसके बाद बच्चों आगे आपका ना ये शुरू हो जाती है हर अल्कलॉइड की डिटेल क्लासिफिकेशन, जिसे हम आज शुरू नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग इट विल बी स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप कि आप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द कंसेप्ट विल बी क्लियर विद इन योर माइंड्स. And still if you have some kind of confusion then you definitely leave a comment for me and I will give answer to you. So take care, meet you soon in the next lecture. Allah Hafiz.